that too on a Guruvar, on a Thursday. I think it gives me immense pleasure, gives me immense pleasure, and it's a direct. I consider it's a direct giving from Baba himself. Um, Namaste all. So as Guruji said, the two main tenets, if you will, that Baba says is Shraddha and Saburi. Um, Saburi is patience, Shraddha is faith, and Saburi is patience. Um, I want to drill a little bit on the what Shraddha means and what Saburi means. I read somewhere. Actually, I have a small, an ornament from Shirdi that beautifully explains what Shraddha and Saburi means. So Shraddha is faith, right? So what is faith? Again, as I understood, faith was nothing but you have faith in God. You go to temples, you chant mantras, you have Ishtadevata, we are so stuck on our desires that we choose different gods for different purposes. Oh, let me choose Shiva, for and chant Trayankapam Yajamahe Sugandham Pushtivardhanam for for physical ailments. Let me focus on Goddess Lakshmi for wealth and prosperity, right? But faith is not about going to temples and then thinking about God, right? Faith is about keeping your peace. It beautifully says keeping your peace when you don't have all the answers. That's what it means. So you ask God, I have this problem. Give me a solution. You're not going to get the solution today or tomorrow. The solution is going to come to you when it has to come. When God, thinks that when you got to get the solution is when you'll get the solution. But during that time, you have to have the peace. You have to have the shanti of the mind to say, God will take care of it. I have, put it at God's feet. God will take care of it. So that's what is faith. Coming to patience, what is patience? Patience is, as we understand, it could be the way I understood was, we have to wait. We understand that through faith, we know that God is going to give us what we asked for, or what God is going to give us what is good for us in some amount of time. But the real meaning of patience is, you know, it's beautifully says is not about how long you wait. It's about how you behave while you're waiting, right? So what does while you behave while you're waiting mean? It means that you don't go and tell God, you know what, God, I've been chanting, Ashtotra Shatanamavali for 15 days. I have been doing this. I've been thinking about you. I've been doing vratam. I've not been eating. I bathe every day in the morning. I bathe every day in the evening. I do all these things, but you haven't given me anything, right? If you do that, then, you don't have patience. So patience is nothing but, I think we have to have this etched in our mind, everybody, right? What patience is, how you behave while you're waiting. So that's what is very, very, very important. You have to remain calm. You have to remain faithful. You have to believe that God will give us. And you have to still maintain the trust, and you have to have that So with that, I would just chant one mantra right now. Guruji, do you want me to chant the 108 names of Baba You can change. now, or I can do that later? Yeah, you can. Total, Okay. our total munch in your hand. Okay, total, you are now. We are all listening you. Okay. Okay. So what I'll do is I will chant Sai Gayatri. I'll chant Shirdi Sai Baba Gayatri mantra, and then I'll have Jayaji explain in Hindi what I explained in English. And then after Jayaji explains, I can chant the Ashtotra Shatanamavali. Does it sound good, Guruji? Go ahead. Okay. So before chanting the Sai Gayatri, I just thought, I would talk about Sai avatars. So you must have heard of, obviously we all know Shirdi Sai Baba.
also know, some of you guys, I think you should know about Satya Sai Baba too. So the three Sai avatars are Shirdi Sai Baba, and because Shirdi Sai Baba, came into being in late 1800s, and he left his body in 1916, sorry. And then Satya Sai Baba took birth in 1918, and as we know, he left his body in 2011. And then there's going to be an avatara called Prema Sai Avatara. So Shirdi Sai Avatara represents Lord Shiva. Satya Sai Baba Avatar represents Lord Shiva and Devi. And Prema Sai Avatara, right, as the name indicates, it's all about Prema. It's about, God, Devi. It's about Durga Devi. So there are three Sai Gayatri mantras, one for Shirdi Baba, one for Satya Sai Baba, and one for Prema Sai Baba. But since we are focusing on Shirdi Sai Baba, I'll just say the Sai Gayatri there are multiple Sai Gayatri mantras for Shirdi Sai Baba, but I'll just say one. It goes like this. Om Tat Purushaya Vidmahe Shirdi Vasaya Dhimahi Tanna Sayinata Prachodayat. So we have to chant it 3 times. It means that it's Shirdi Sai Baba, Shirdi Vasaya. So he resides in Shirdi, and Tanno Sai Prachodayat. So that's what it means. Jayaji, if you could explain in a nutshell as to what I described about faith and patience, that would be great. And then I can go ahead with the Shatanamavali. Pranam Guruji, Shri Gurubhyo Namaha. Thank you, Krishnanji, and namaste to all. So I'll try my best to translate. So Krishnan जी कह रहे हैं कि गुरुजी को धन्यवाद अदा किए कि गुरुजी ने उनको इस गुरुवार सत्य शिरडी साई बाबा के बारे में बात करने की मौका उनको मिली, और वो मानते हैं कि ये डायरेक्टली शिरडी साई बाबा की मैसेज ही है जो गुरुजी के द्वारा उनको मिली है। और उन्होंने 2 चीजों के बारे में जो शिरडी साई बाबा हमेशा उनकी मोटो रही, श्रद्धा और साबूरी। किसी मंदिर में आप देखते हैं तो भी राइट और लेफ्ट में वो साइन होती है श्रद्धा और साबूरी। जैसे हम श्रद्धा की मीनिंग क्या है कि हम विश्वास से रहे, और साबूरी क्या है कि पेशेंटली इंतजार करें, राइट। बट बस उसका मीनिंग उतना ही नहीं है कि हम श्रद्धा और साबूरी से रहे। उनको शिरडी से एक ऑर्नामेंट मिली है जिसमें उसका अर्थ और डिटेल लिखा है। उसका अर्थ क्या है, उसके पहले उन्होंने कहा कि हम लोगों की आदत है कि हम अलग अलग आराध्य को या अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जिनसे उसकी फल हम चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर घर में हमें लक्ष्मी या वेल्थ की जरूरत है तो हम लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं। वैसे ही धैर्य चाहिए तो लॉर्ड हनुमान की। और शिरडी साई बाबा की 2 की मोटो उन्होंने याद दिलाए सबको, वो एक श्रद्धा है और साबूरी है। बट उसका डिटेल्स जो है उसकी बहुत अच्छी से उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया। वो जो उनको वो ऑर्नामेंट शिरडी से मिली है। तो श्रद्धा क्या है, ऐसा नहीं है कि जस्ट हम मंदिर जाए, पूजा करें, बाबा को बोले देखो बाबा मैं श्रद्धा से रह रही हूँ, मेरे काम हो नहीं रहे हैं और मैं क्या करूं। ऐसा नहीं है। जब तक हमारे काम ना होए शांति से इंतजार करें। भगवान को पता है जब हमें फल मिलनी चाहिए, तो शांति से इंतजार करें। वो एक पॉइंट है। दूसरा साबूरी, पेशेंटली अगेन मैंने इतने दिन इंतजार कर दिया, मैंने इतने हफ्ते किए, सालों किए, महीने किए, सालों किए, वो नहीं है। जब हम इंतजार कर रहे हैं, कैसे हम बर्ताव कर रहे हैं, ये नहीं कि मैंने इंतजार कर रही हूँ, बट कैसे मैं बर्ताव कर रही हूँ, वो बहुत डिटेल की बात उन्होंने कहा है। और उन्होंने कहा कि 3 अवतारें हैं। एक अवतार शिरडी साई बाबा, दूसरा सत्य साई बाबा, तीसरा प्रेम साई बाबा। सो शिरडी साई बाबा भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म
लेट 1800 में हुआ एंड अर्ली 1900s में उनकी समाधि पाए हो। उसके बाद सत्य साई बाबा के अवतार हुए और सत्य साई बाबा दोनों भगवान शिव और माँ पार्वती के अवतार माने जाते हैं। अभी तीसरा अवतार प्रेम साई बाबा की होने वाली है, वो माँ पार्वती की माना जाता है और उन्होंने साई गायत्री का जप किया, वो जो हम शिरडी साई बाबा को जप करते हैं। और उन्होंने कहा कि उसका रिसाइटेशन कैसे करना है, एंड दैट विद दैट एनोटेशंस, एंड वो 3 बार कहना है। आई थिंक मैंने मोस्टली समराइज किया जब तक जितना मेरा नॉलेज है। गुरुजी प्लीज फील फ्री टू करेक्ट। थैंक यू। जया जी समराइज व्हाटएवर कृष्णन जी आल्सो नो, बट बनवाने में इसमें एक चीज और डेकोरेट करूंगा कि जो साईं बाबा जो कहते हैं श्रद्धा और शंभुरी विष्णु इंतजार करो, अरे इंतजार करते वक्त आप कैसा बिहेव करते हो, हाउ यू बिहेव योरसेल्फ व्हेन यू आर इन द पेशेंस मोड, that time only your faith work. Faith means not on a faith on a statue. Faith means this work will be happen because I surrendered in the feet of Sai or whatever. That's why the Sai Baba is the live God at present in Kali Yuga, because he give the message that keep the patience, but you check yourself when you are in a patience mode. जब भी आप सब्र कर रहे हो, क्योंकि ये तो ऑप्शन है ही नहीं ना, सब्र तो करना ही पड़ेगा। कोई भी काम, मेरा काम अगर 2022 में होना है तो 2022 तक मुझको सब्र करना ही है, कोई नहीं। लेकिन सब्र अगर करूंगा साथ में विश्वास के साथ, तो मेरा बिहेव, मेरा आचरण के ऊपर, मेरे ऊपर जो परेशानियां बॉदरेशन है वो भारी नहीं होगी और वह मुझसे बड़ी नहीं होगी। कोई भी पीड़ा आपके व्यक्तित्व से, आपके शरीर से बड़ी हो जाती है, वह सिर्फ आज के लेसन से मैंने भी सीखा बड़ी नहीं होगी कि आपका पेशेंस के वक्त आपका बिहेव कैसा है, हाउ यू बिहेव। इफ यू कीप द फेथ एंड स्टार्ट वॉचिंग योर लाइफ एज ए व्यूअर, आई एम श्योर आपका पेशेंस बराबर आएगा। और अगर एक पीड़ित भाव से देखा, अरे इतने दिन हो गए आरती करते हुए कुछ नहीं हुआ, ओके। नाउ अगेन Bal is going into Krishnaji court. Yes. Namaskaram again, Guruji. So I'll chant the 108. It's Ashtotra Shatalamavali. So Ashtotram means Stotram, right? Ashtotram means hymn. Shatanamavali is 100 names. So as the name indicates, the Stotra that I'm going to chant, says 108 names of Baba. But the key point to note that it's not just the names, right? It is how Baba is, what he does, what powers he has, what miracles he does, what leelas, Sai Baba has under his arms. What type of manifestations he can do, or how he can bring benefit to mankind is what is explained in the Stotras. And also before that, I would like to explain just a few minutes, take a few minutes and explain the significance of 108 number in our Hinduism. So if you look at it, our Guruji always says, when you go to the temple, it is not about God, it is about you connecting yourself with the divine, right? And it is all about self-realization at the point. You realize that God is within me. Today we don't realize. That's why we go to temples, so that to connect to the energy of the deity, which is supreme Godhead, and then connect with yourself and then realize the divine. So if you look at it, it is always connecting with the Vedic cosmology. They say it as Vedic cosmology, but it is about solar system. So the main planets are moon and the sun, correct? So if you look at 108, the distance between the the Earth and the sun is 108 times the diameter of the sun. And if you look at the distance between the Earth and the moon, it is equivalent to 108 times the diameter of the moon. So
Scientifically, it's also proven. It's Vedic. Actually, Bhagavatam says this in Srimad Bhagavatam. It says that, you know, distance between the earth and the sun, and then distance between the earth and the moon, and it has been scientifically proved. And also, so that is the solar system. But inside our body, there are 108 nadis that converge into the heart chakra. So as you know, heart chakra is the main center point of love and compassion. So there are 108 nerve endings in the heart chakra. Similarly, I read somewhere like a couple of months back that, you know, tortoise, the turtle and the tortoise, they can live for 350 years. And the reason why they live for 300 years is because they breathe only 4 times a minute, just 4 times a minute. But what we do, humans on an average breathe about 15 times a minute, which comes to 21,600 daily. And it is said that if you breathe for 108 times in a day, you will live for as long as 1,000 years. And that's what used to happen in Satya Yuga. So as we know, we have Satya Yuga, Treta, Dwapar Yuga, and Kali Yuga. So in Satya Yuga, people used to meditate. People used to do all the yogic practices, pranayama, meditate. And they used to breathe only 108 times a day. And that's why the average lifespan in Satya Yuga was around 10,000 to 20,000 years. One man lived for 10,000 to 20,000 years. But as we came across yugas to Kali Yuga, you know, there is so much anger, there is so much frustration, there is so much, we breathe so fast, right? And that's why it reduces the, lifespan of a man. Similarly, that's the case for a dog. Dog breathes so fast, and that's why they live for 15 years. Maximum, they live for 15 years. So, as Guruji says, you know, view everything as a viewer, be calm and be patient, and, you know, breathe slowly. So that's the significance of 108. And that's the reason why all mantras have 108, names. And 108 represents also the distance between our soul and God's soul. So every time, you chant a mantra, you take one step closer to God. So that's the significance why we chant 108 names of anything. So with that, Jayachi, do you want to explain this a little bit, and then I'll go into the Ashtotra? Guruji, I think you have to mute Jayachi. Yeah, I got it. Can you guys hear me now? Am I audible? Okay, sounds good. Let me repeat. ये कंटेंट बहुत है, बहुत कंटेंट मैं पहले बार मैं खुद सुन रही हूँ पहले बार, सो प्लीज बेयर विथ मी, आई विल ट्राई माय बेस्ट. तो कृष्णन जी फिर हमको फिर हम एक्सप्लेन किए कि जब हम मंदिर जाते हैं भगवान से बस ये पूजा करने के लिए नहीं या प्रार्थना करने के लिए नहीं, जैसे हमारे गुरुजी बहुत बार हमें कह चुके हैं, खुद अपने आप से कनेक्ट होने के, अपने सोल से कनेक्ट होने के लिए, उस हर भगवान की एक एनर्जी होती है, हर मूर्ति की एक एनर्जी होती है, तो उस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए वो एनर्जी सेंटर हम जा रहे हैं. गोल होना चाहिए कि हमसे कनेक्शन करने के लिए. तो एक बात उन्होंने फिर याद दिलाए जो गुरुजी हमें हमेशा दोहराते हैं. और देन हर अष्टोत्र का मीनिंग ये है कि 108. क्यों हमारी अष्टोत्र में 108 होती है, उसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, स्पिरिचुअली भी सिग्निफिकेंस है और साइंटिफिकली भी प्रूवन है. तो वो कह रहे हैं कि जैसे हमारे कॉस्मिक यूनिवर्स में 9 प्लैनेट्स हैं, दो की प्लैनेट्स हैं, एक सन सूर्य भगवान, दूसरा चंद्रमा मून. तो द डिस्टेंस हमारे अर्थ, राइट, अर्थ और धरती और सूर्य भगवान के बीच डिस्टेंस 108 टाइम्स डायमीटर ऑफ द सन है, उसका एक सिग्निफिकेंस है. वैसे ही धरती और चंद्रमा के बीच में 108 टाइम्स चंद्रमा की डायमीटर की डिस्टेंस है. और हमारे ही शरीर में 108 नाड़ियां होते हैं जो हमारी हृदय चक्र में आके मिलते हैं. हृदय चक्र इज लाइक फॉर लव,
कंपैशन सब है। तो ये सब 108 की सिग्निफिकेंस ये है। और इसलिए हमारे ओल्डन डेज में पूरे जैसे हमने हमारे ऋषि मुनि ने जो सब लिखा है वो 108 है सिग्निफिकेंस ऑफ दैट नंबर। अभी साइंटिफिकली ये प्रूवन भी है। और ये भी उन्होंने कहा कि हमारी जो 4 युगे हैं, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, सत्य युग, द्वापर युग, त्रेता युग एंड कलयुग। पहले जब हम देखें तो ऋषि मुनियों जो उनमें ये सब काबिलियत थी कि वो योगा कर पाए, सेल्फ कंट्रोल कर पाए, उन बहुत सारे दे हैव ऑल दीज सेल्फ रियलाइजेशन टेक्निक्स। तब आप देखें तो हर पर्सन, हर जन 10,000 से 20,000 सालों तक जिंदा रहे, क्योंकि वो अपने श्वास इतने कम लेते थे। पूरे एक दिन में बस 108 टाइम श्वास लेते थे वो। बट जैसे ही युग की दूसरे युग की आना हुआ और अभी कली युग में इतना क्रोध, एंगर एंड सो मेनी ऑल दिस नेगेटिव वाइसेस, या लाइक लाइवलीहुड ऑफ अ पर्सन हैज रिड्यूस्ड, बहुत कम हो चुकी है। और टॉर्टॉइस, पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं टॉर्टॉइस को। और कृष्णन जी ये भी बताए कि उन्होंने अभी रिसेंटली पढ़ा, एक टॉर्टॉइस की लाइफ स्पैन वो 300 से 350 इयर्स तक जिंदा रहती है अभी भी, क्योंकि वो बस 1 मिनट में 4 बार सांस लेती है। बट हम एक बार बहुत सांस लेते हैं तो हमारी आयु कम हो चुकी है। वैसे ही अगर हम कुत्ते को देखें तो उसका सांस बस 15 साल की है, क्योंकि वो बहुत सारे सांसें लेते हैं। इसमें जस्ट क्या है कि सत्य युग में एक ऋषि मुनियों, उनके पास वो कंट्रोल थी कि वो पूरी एक दिन में बस 108 सांस लेते थे। और उसका सिग्निफिकेंस बता रहे हैं कि हमारे अष्टोत्र में उसमें क्यों 108 का नाम का इतना सिग्निफिकेंस क्यों है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि शिरडी साई बाबा अष्टोत्र में जब हम 108 नाम पढ़ते हैं, मुझे भी आती है वो, बट बस ये नाम पढ़ना ही नहीं है, एक एक नाम में बाबा कैसे थे, क्या खाते थे, उनका लीला क्या रहा, उनका मिराकल्स उन्होंने क्या किया, वो सब उसमें जुड़ी हुई है, बस वो नाम नहीं है। और एक और इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बताया कि हमारी आत्मा और भगवान की आत्मा के बीच भी 108 सोल की अंतर, हमारी आत्मा और भगवान की आत्मा के बीच भी 108 नंबर का डिस्टेंस है। जब हम एक एक नाम रिसाइट करते हैं, हम भगवान के पास, आत्मा के पास जा रहे हैं। आई थिंक आई समराइज दैट। गुरुजी प्लीज करेक्ट इट। धन्यवाद। Thank you, Jayachi. A very good explanation. Very apt, and I don't think you missed anything. So thank you very much. So with the beautiful explanation, translation from Jayachi, I'll go into the chanting 108 names of Baba. So if you can sit straight, close your eyes, and imagine your Ishta Devata. And as I chant each and every verse, imagine that you're taking a flower and putting at your Ishta Devata's feet. Okay, and I'll try to chant it slowly. Guruji, it will take around 10 minutes, Guruji. Yes, okay, carry on. Today we conclude our meditation with that. Just keep your spine straight and just don't surrender your botheration, worries with the month chanting, the chanting of the name of Sai 1008 times, 108 times. Blessings. Carry on. Om Pushpamalikam samarpayami, Pushpaihi pujayami. Om Shri Sai Nathaya namo namaha, Lakshmi Narayanaya namo namaha, Sri Krishna Rama Shiva Marutyadi Rupaya namaha, Om Sheshashayine namaha, Om Godavari Tata Shiridi Vasine namaha, Om Bhakta Hridalaya namaha, Om Sarvahrid Vasine namaha, Om Bhuta Vasaya namaha, Om Bhuta Bhavishyat Bhava Varjitaya namaha, Om Kalatitaya namaha, Om Kalaya namaha, Om Kala Kalaya namaha, Om Kala Darpa Damanaya namaha, Om Mrityunjaya namaha, Om Martyabhaya Pradaya namaha, Om Jiva Dharaya namaha, Om Sarva Dharaya namaha,
ओम भक्तावन समर्थाय नमः, ओम भक्तावन प्रतिज्ञाय नमः, ओम अन्नवस्त्रदाय नमः, ओम आरोग्यक्षेमदाय नमः, ओम धनमांगल्यप्रदाय नमः, ओम हृदयसिद्धिदाय नमः, ओम पुत्रमित्र कलत्र बंधदाय नमः, ओम योगक्षेमं वहाय नमः, ओम आपद्बांधवाय नमः, ओम मार्गबांधवे नमः, ओम भुक्ते मुक्ते स्वर्गापवर्गदाय नमः, ओम प्रियाय नमः, ओम प्रीतिवर्धनाय नमः, ओम अंतर्यामिने नमः, ओम सचिदात्मने नमः, ओम नित्यानंदाय नमः, ओम परमसुखदाय नमः, ओम परमेश्वराय नमः, ओम परब्रह्मणे नमः, ओम ज्ञानस्वरूपिणे नमः, ओम जगतपित्रे नमः, ओम भक्तानां मातुदातृपितामहाय नमः, ओम भक्ताभयप्रदाय नमः, ओम भक्तापराधीनाय नमः, ओम भक्तानुग्रहकराय नमः, ओम शरणागत वात्सल्याय नमः, ओम भक्ति शक्ति प्रदाय नमः, ओम ज्ञान वैराग्य प्रदाय नमः, ओम प्रेम प्रदाय नमः, ओम संशय हृदय दौर्बल्य पाप कर्म वासन क्षय कराय नमः, ओम हृदय गंधि वेदकाय नमः, ओम कर्म ध्वंसिने नमः, ओम शुद्ध सत्व स्थिताय नमः, ओम गुणातीत गुणात्मने नमः, ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः, ओम अमित पराक्रमाय नमः, ओम जैने नमः, ओम दुर्दक्ष क्षोभियाय नमः, ओम अपराजिताय नमः, ओम त्रिलोकेषु अभिघाताय गते नमः, ओम असख्य रहिताय नमः, ओम सर्वशक्ति मूर्तये नमः, ओम स्वरूप सुंदराय नमः, ओम सुलोचनाय नमः, ओम बहुरूप विश्वमूर्ते नमः, ओम अरूपाव्यक्ताय नमः, ओम अचिंत्याय नमः, ओम सूक्ष्माय नमः, ओम सर्वांतर्यामिने नमः, ओम मनोभागतीताय नमः, ओम प्रेम मूर्तये नमः, ओम सुलभ दुर्लभाय नमः, ओम असहाय सहायाय नमः, ओम अनाथनाथ दीन बांधवे नमः, ओम सर्वभार प्रते नमः, ओम अकर्मणेक कर्म सुकर्मणे नमः, ओम पुण्य श्रवण कीर्तनाय नमः, ओम तीर्थाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम शतांगतये नमः, ओम सत्परायणाय नमः, ओम लोकनाथाय नमः, ओम पावनांगाय नमः, ओम अमृतांशवे नमः, ओम भास्कर प्रभवाय नमः, ओम ब्रह्मचर्य तपस्यादि सुवर्ताय नमः, ओम सत्य धर्म परायणाय नमः, ओम सिद्धेश्वराय नमः, ओम सिद्ध संकल्पाय नमः, ओम योगेश्वराय नमः, ओम भगवते नमः, ओम भक्तवत्सलाय नमः, ओम सत्पुरुषाय नमः, ओम पुरुषोत्तमाय नमः, ओम सत्य तत्व बोधकाय नमः, ओम कामादशध्वरि ध्वंसी नमः, ओम अभेदानंदानुभव प्रदाय नमः, ओम सम सर्वमत समताय नमः, ओम श्री दक्षिणामूर्तये नमः, श्री वेंकटेश रमणाय नमः, ओम अद्भुतानंदचर्याय नमः, ओम प्रपन्नार्तिहराय नमः, ओम संसार सर्व दुख क्षयकराय नमः, ओम सर्वविद सर्वतोमुखाय नमः, ओम सर्वांतर्बहिस्थिताय नमः, सर्वमंगलप्रदाय नमः, सर्वाभीष्ट प्रदायकाय नमः, ओम समरस सन्मार्ग स्थापनाय नमः, ओम श्री सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु श्री साईनाथाय नमो नमः, ओम अवैताभ्य सर्वाभ्य देवताभ्यो नमो नमः, दिव्य परिमल पात्र पुष्पाणि समर्पयामि, स्वर्ण पुष्पम समर्पयामि. I will also chant the Swasti mantra. Swasti mantra is the mantra for well-being for everybody. So please remain in the meditative state. Swasti prajabhya paripalayantam nyayena margena mahi mahishaah gobrahmanebhya shubhamastu nityam loka samasta sukhino bhavantu. पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं शोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भयाः अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पौत्रिणः अदना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्. ओम शांति शांति शांतिः. आंखें बंद ही रखें, eyes close. Be with the energy of mantra chant. Feel the vibration in your body.
along with the patience and faith in the divine energy, surrendered your all botheration and worries in this mantra energy. साई ऊर्जा में अपनी समस्त पीड़ाएं, शारीरिक हो, आर्थिक हो, मानसिक हो, समर्पित करें विश्वास और धैर्य के साथ। Let's in the divine energy what you want from your coming life. क्या चाहते हैं आप आने वाले जीवन से? विश्वास और सब्र के साथ, along with the faith and patience, surrendered your all desires for yourself, for your family, and for society. साईं तुम्हारे चरण, साईं तुम्हारे चरण, पावन करते पापी मन। साईं तुम्हारे चरण, पावन करते पापी मन। लेके आस यही मैं भी आया, पूरा होगा मिलन। साईं तुम्हारे चरण, पावन करते पापी मन। Become aware of your heart chakra, अपने हृदय पर अपना ध्यान। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हरि नारायण नारायण नारायण, हरि ओम। हरि नारायण नारायण नारायण, हरि ओम। हरि नारायण नारायण नारायण, हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम।
Hari Om, Hari Om, Hari Om, Hari Om, Hari Narayana, 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 Hari Om, Hari Narayana, 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 Hari Om, Hari Om, Hari Om, Hari Om, Hari Om. Become aware of your own name. Become aware of your own body. अपने शरीर के प्रति सजग हो. आहिस्ता आहिस्ता अपना समय लेते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं. You can open your eyes as per your own time along with a smile. And drink the water. पानी का सेवन करें. I request those are able to open their videos, please open your videos. जो लोग भी इस स्थिति में अपना वीडियो ओपन कर सकते हैं, वीडियो ओपन करें. देखिए, हम प्रतिदिन कुछ नए नए ज्ञान के साथ, अलग अलग ज्ञान के साथ हम एक ध्यान मुद्रा में बैठ कुछ पल संयुक्त ध्यान लगाते हैं. आपको मालूम होगा द कलेक्टिवली प्रेयर, संयुक्त ध्यान हमेशा एक रिजल्ट ओरिएंटेड होता है. वो हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम कि कहां पहुंच रहे हो, लेकिन हमारी परेशानियां, तकलीफों की नैया को साथ में लेते हुए न जाने कितने लोगों की नैया पार कर रहा होगा, ऐसा हमारा विश्वास है. क्या कारण है 34 पीपल आर हियर? क्या रीजन? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज इन लोगों को ये समय आज छूट मिली थी कि इतने बैठे. तो आप आंख बंद करके जो 10 मिनट बैठते हैं, भले आपका ध्यान कहीं और रहता है, योर माइंड वेंट समवेयर एल्स, बट फ्यू मोमेंट्स, आपके कुछ मोमेंट से अगर आप उस शक्ति से जुड़े रहते हो, तो एक प्रकार से आपका जो दे रहे हो समय वो सार्थक हुआ. व्हाट एवर टाइम यू ऑफर्ड. हम क्या सीख रहे हैं? हम यही सीख रहे हैं कि अलग अलग देवी देवताओं के बारे में ज्ञान, और वो भी अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रांतों की भाषाओं में. ये केवल हिंदुस्तान में पॉसिबल है. अलग अलग प्रांत. देखो, कृष्ण जी फ्रॉम साउथ, जय जी फ्रॉम साउथ, दे आर इन द यूएस. वहां से मंत्र चेंटिंग हमको मिल रही है. जो साईं मंदिर में लोग जाते हैं, वहां चेंटिंग. सो यू जस्ट फील यू आर ब्लेस्ड. Bless yourself, kudos yourself, because you become a part of the session and you got a such upon it. And day after tomorrow, we are going to get one big opportunity in respect of Navratra. आप सभी लोग नवरात्रे अपने अपने ढंग से मनाएं.
लेकिन एक डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग परिवार की तरफ से एक आधा घंटा अपना समय निकालकर, आधा घंटा 1 घंटा आप इस प्रोसेस में भी जुड़े, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है कि पूजन अर्चन में ना जानू, जानू तेरा ध्यान। पूजन अर्चन में ना जानू, जानू तेरा ध्यान। विघ्न हारणी पाप तारणी कर सबका कल्याण। वह माता रानी केवल आपके भाव की भूखी है। जैसा कृष्ण जी ने कहा, जया जी ने हिंदी में समझा कि भाव, भाव मीन्स क्या? एक श्रद्धा और विश्वास इस बात का कि मैं तेरे साथ हूं। ये आपका हाथ, ये आपका हाथ नहीं है, ये उस शक्ति का हाथ है। ये बता रहा आपको कि आपके साथ है, वो आपके हर सुख दुख तकलीफ इच्छाओं के साथ है। बस एक वक्त करो, सब्र रखो, पेशेंस रखो। माता रानी के 9 दिन, हर दिन एक चक्र से संबंधित, हर दिन एक ग्रह से संबंधित। हम उस चक्र से संबंधित, उस ग्रह से संबंधित, उस माता के नाम के जप से संबंधित ध्यान करा करेंगे। और वह पहला दिन, फर्स्ट दिन शैलपुत्री, जो भी शैलपुत्री का राउंड होता है, मूलाधार चक्र से लेकर हम सहस्त्रधार चक्र तक आएंगे। बस सब्जेक्ट टू आई नीड योर प्रेजेंस। भले आप आधा घंटा पौना घंटे के लिए आओ, लेकिन माता के 9 रूप को हम एक कलयुग की भाषा में कैसे समझें? आज लोग बोलते हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ लो, पढ़ लेते हैं, संस्कृत आदि तो हमें समझ में नहीं आती, हम मंत्र उच्चारण करते हैं, बस हमको अच्छा लगता है। बट इस 9 दिन में हमें प्रयास करेंगे कि वो शब्दों की मीनिंग, वो आरती की मीनिंग भी, उसके अर्थ भी आप तक पहुंचाए, जिसे आप एक बार समझ लोगे तो फिर उसके बाद आपको चैंटिंग में भी आनंद आएगा और आपको गाने में भी आनंद आएगा। यस नो? क्योंकि हम लोग हर नहीं कर सकते, हम लोग ग्रस्त के लोग हैं, अपनी नौकरी बीवी परेशानियों में हम व्यस्त हैं। हम कहाँ संस्कृत के श्लोक सीखेंगे? वो भाग्यवान होते जिनको संस्कार मिले रहते हैं, वो सीख लेते हैं। जिनका जुनून होता है, जया जी जो कि प्रोफेशनली इंगेज है, कृष्ण जी, कई लोग, वासु वगैरह, यहाँ पर वासु जी भी हैं जो अपने प्रोफेशनल लाइफ में तो इंगेज है, बट साथ में मंत्रों को भी समझ लेते हैं। वह मंत्र शक्ति से परिचय करवाएंगे जाएंगे आपका नवरात्रि के अंदर। यस, तो आई रिक्वेस्ट यू, कल हमारा 12th रूम है, तो हमारे 12 रूम, 12 राशियां, 9 ग्रह और 12 भाव की यात्रा पूर्ण हुई। और उसके बाद जो भी समय आएगा, मैं हम लोगों के लिए एक एस्ट्रो सेशन रखूंगा, जिसमें हम लोगों के विचार भी जानेंगे, लोगों को इनवाइट भी करेंगे। और इसी भाव के साथ कि आप सदा अपने साथ रहें, अपनी मुस्कान के साथ रहें, परेशानियां, तनाव, चिंताएं छोड़ दें। उसके ऊपर जो आपकी श्वास चला रहा है, जिसे कोई साईं बाबा करके चेंट करता है, जिसे कोई विष्णु भगवान कह के बोलता है, अलग अलग नामों की ऊर्जा। हम सब मोबाइल यूज करते हैं कि नहीं? सबके पास मोबाइल है, किसी के पास सैमसंग का है, किसी के पास i10 का है, ना किसी के पास अलग अलग मोबाइल, अलग अलग चार्जर। इसी प्रकार धर्मों में, बट है टोटल जो साईं बाबा ने फाइनल किया, सबका मालिक एक, इज वन मैसेज, सबका मालिक एक, ऑल गॉड इज वन। ओके, तो ये माता जी के 9 दिन आते हैं, 3 दिन तमोगुण के, 3 दिन सत्व के, 3 दिन रजो के गुण के और 3 दिन सत्व के गुण के। अब बसु जी कुछ कहना चाहते हैं? बसु जी के बाद हम कंक्लूड करेंगे। यस, हेलो गुरु जी, कैन यू हियर मी? यस बसु जी, गुरु जी, मैं जो अधूरा छोड़ा था ना 10 स्तोत्र वाला, तो वो 1 मिनट लगेगा, बोल दूं मैं आज? हाँ करो आज। ठीक, मेरा वॉइस क्लियर है? मेरा वॉइस क्लियर है? हाँ क्लियर है, आप बोले, बड़ा अच्छा। ये आद्दा माँ जो है, ये आपका नियर दक्षिणेश्वर टेम्पल जो है, वहां पर ये बैठता है। और वीक में कोई तिथि में खुलता है, हर दिन ये नहीं खुलता है। ठीक है, जो 10 स्तोत्र, इसके 3 रूप है। एक रामकृष्ण है, फिर आद्दा माँ काली माँ का है, फिर कृष्ण भगवान, एक तीनों सन एक सन रहता है ये। ठीक है, उसका जो मूर्ति है। हेलो, हाँ जी, हाँ, तो बोल रहा हूँ मैं। नमस्ते। ओम नमः श्रीनिवत्स विवक्षामि आद्दास्तोत्रं महाफलं जत्पठं सततं भक्ता सायब विष्णुवल्लभ
मृत्यु व्याधि भयंकर किंचित कलौजिगे अपुत्र पुत्र पुत्रं त्रिपुखं सवनं जरि द्वामासे बंधना मुक्ति विप्रवंतं सुतं जति मृत्यवस्स जीवद्वस्स सन्मासं सवनं जरि नौकां संकटे रुद्रे पाठं जमाप्लुआत् लिखित स्थापनंगे नग्नेचर भयंकचि राजस्थान जय नित्यं प्रसन्नं सर्वदेवता ओम ह्रीं ब्रह्मा निर्मलक च वैकुंठ सर्वमंगला इंद्राणी अमरवत भूमिका वरुणालय जमालय कालुर पक्वर वनस्व महानानी तो कोटिज बैबंग वाहिनी नैरितं रक्तदंता शेषनं सुरधारिणी पातल वैष्णवी बशिंगल देव मोहिनी सुरचन मुनिपे सुरच च मुनिदिबे दंकं भद्र कालिका रामेश्वरी सतिबंध विमला पुरुषोत्तमे विरजा उर्दश कामक खलील पर्वते कालिका वंग देशे चार्जधांग महेश्वरी बालानसं पुट्टगा क्षत्रगैश्वरी कुरुक्षेत्र भद्र काली प्रजि कार्तनी प्रदारकांग महामाय मुथरांग महेश्वरी खुदातं सर्वभूतानां वेदातं सकदस्य च नामि शुक्लपक्ष कृष्णश एकादशी परा दक्ख सद्वित देवी दक्ख जग विनाशिनी रामस्य नकितांगी रावण ध्वंसकारिणी चंडमुंड देवी रक्त बीज विनाशिनी निशुंभ शुंभ वतन वदिकोइड बखादिनी विष्णु भक्ति प्रदा दुर्गा सुखदा मक्खदा सदा तस्ततं पुरं जतं सहतं नर सर्वव्याधि वैघ्नस्य सर्वव्याधि विनाशनं कोटि फलं तस्मत् जय में चक्रता पातु विजय पातु विष्णुता नारायण शिष्य दश सर्वांगी सिंह वाहिनी शिव दुति उग्रचंड प्रत्यंग परमेश्वरी विशालाक्षी महामा कौमारी सिंखनि शिवा चक्रानि जदात्री जनमंत्र प्रिया दुर्गा जयंती काली च भद्र काली महादेव नार सिंह जवाहर सिद्धि अति सुख प्रदा भयंकरी महारुद्र महाभय विनाशिनी शिवम जामले वम नारद संवादे आद्यस्तत्रं समाप्तम्। ओम विष्णुवे नमः। मन का तंत्र, the instrument of your mind is called मंत्र। मन, तंत्र, मन और तंत्र, मंत्र। देखो मंत्र की ऊर्जा आज भाई पूरा ऊर्जा में अमार हो गया। ब्लेसिंग्स, अपना ध्यान रखें, अपनी मुस्कान के साथ रहें। ब्लेसिंग टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ स्माइल। Tomorrow again we meet at 8:30. Thank you, Basu ji. Thank you, Jaya ji. And thank you, Krishnan ji. And thanks to all of you. Blessings.